جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت سلمان صفدر جو عمران خان کے وکیل ہیں وہ ایک اہم درخواست دائر کرنے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سے باہر آ رہے ہیں. آج میڈیکل گراؤنڈ پر عمران خان کی رہائی کی درخواست کی گئی ہے. ان سے گفتگو کی کوشش کریں گے. سر سوری آپ کو ڈسٹرب کریں، تھوڑا سا بتائیے گا عمران خان صاحب کے حوالے سے جو آج درخواست دائر کی ہے اس میں کیا گراؤنڈز رکھی گئی ہیں؟ سر بس وہ ابھی آپ پٹیشن چل پڑی ہے، جی سر. کیسز فائل ہو گئے ہیں، القادر بھی ہے، توشہ خانہ بھی ہے، سب کیسز خان صاحب کی اور ان کی ایریا کے. رمضان آ رہا ہے، رمضان سے پہلے ضمانتیں ہمیشہ سنی گئی ہیں، آج بھی سنی جائیں گی. سر عمران خان صاحب تو اطلاعات کے مطابق میڈیکل گراؤنڈ پر باہر نہیں آنا چاہتے، تو کیا ان کی رضامندی شامل ہے؟ میرٹس پر بات ہو رہی ہے، میڈیکل کی بات نہیں ہو رہی. اچھا سر، جو عمران خان صاحب کی آنکھ کے حوالے سے بات چلی تھی کہ 85% ان کی بنائی جا چکی ہے، یہ میڈیکل رپورٹس کے مطابق بھی جی تفصیلی بات ہو گئی ہے. آج کے لیے اتنا ہی جی. تھینک یو سو مچ. ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک دفعہ پھر چوتھی مرتبہ سی ایمز فائل کی گئی ہیں عمران خان صاحب کے بیہاف پر اور ان کی اہلیہ بشرا عمران کے بیہاف پر. اور ہماری آج جو سی ایم اپلیکیشنز ہیں ان کی جو کانٹینٹس ہیں اور گراؤنڈز جو ہیں وہ پہلے سے تھوڑی ڈیفرنٹ ہیں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور کچھ ایسا ٹائم بھی آنے والا ہے جس میں عدالتیں ہمیشہ آن پرائورٹی صرف ضمانتوں کو ہی سنتے ہیں. میرا مطلب رمضان المبارک کے مہینے سے ہے، جو کہ 18-19 کو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پہلا رمضان ہے. عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں گزشتہ 1 سال سے کوئی بھی کیس، ان کا کوئی بھی ضمانت کی اپلیکیشن، کوئی بھی ہیئرنگ کی پٹیشن نہیں لگی. اور یہ باوجود اس بات کے ہے کہ ہم نے بار بار اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا، بار بار ہم نے ان پرسن رجسٹرار صاحب کے آفس گئے، چیف صاحب سے خود درخواست کی. القادر کی آپ مثال لے لیں کہ القادر میں اب تقریباً 1 سال اور 1 ماہ ہو چکا ہے کہ القادر میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے خان صاحب اور ان کی اہلیہ کی سسپینشن آف سینٹنس کی آن میرٹس جو فائل ہوئی ہیں اپلیکیشنز، ان پہ ایڈجوڈیکیٹ نہیں کیا. 2-3 مرتبہ سرکار بہانے کر کے چلی گئی اور اس کے بعد بار بار اپروچ کرنے کے بعد بھی. سو پروفیشنل لیگل ٹیم کیا کر سکتی تھی اس موقع پر؟ ایک کے بعد ایک ہم اپلیکیشن فائل کرتے رہے. 561 میں پائل اپ ہوتی گئیں، 4 پٹیشنز اس وقت پائلڈ اپ ہیں. اس کے بعد مجبوراً آج سے ایگزیکٹلی 2 ماہ پہلے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو ایک خط ڈالا اور اس خط میں تمام ہسٹری اس کیس کی اور ریکویسٹ کہ آفس جو ہے وہ اس کیس کو نہ فکس کرتا ہے نہ آپ تک رسائی دیتا ہے. تو اور کوئی آپشن نہیں بچی کہ آپ کو خط و کتابت کے ذریعے آپ کی توجہ حاصل کی جائے اور عمران خان صاحب اور بشرا عمران کی پٹیشنز لگیں. آج اس کو بھی 2 ماہ ہو گئے ہیں، اس خط کے نتیجے میں بھی یہ کیسز فکس نہیں ہوئے. سو اس وقت سب سے بڑا جو گریونس ہے، ایک سیپریٹ گریونس ہے ادر دین دی میڈیکل کمپلیکیشن، کہ عمران خان صاحب کے کیسز اور ان کی ضمانت کی اپلیکیشن جو ان کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کو کیسز فکس کرنے چاہیے. سو آج ہم نے جو نئی سی ایم فائل کی ہے اس میں جو آئے کی ان کی کمپلیکیشن ہے اور میڈیکل کے جو گراؤنڈز ان کے سامنے آئے ہیں ان کی روشنی میں ہم کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ ان کے جو کیس میرٹس پر فائل ہوئے میں وہ تو فکس ہوں اور وہ آئندہ ہفتے میں، اسی ہفتے میں ٹاپ پرائورٹی پر وہ کیسز فکس ہونے چاہیے. میں بشرا عمران صاحبہ کے حوالے سے بھی اسپیشلی بات کرنا چاہوں گا. خواتین کے لیے فیمیل گراؤنڈ یہ ہمیشہ سے، اور 7 سال سزا ہو اور 1 سال سے ایک خاتون بار بار اسلام آباد ہائی کورٹ کو اپنے وکلا کے تھرو اپروچ کر رہی ہوں، درخواست کر رہی ہوں کہ میرے کیسز کو لگایا جائے اور ان کیسز کو نہ سنا جائے، یہ بہت کویسچنیبل اور آبجیکشنیبل کانڈکٹ ہے آن پارٹ آف دی فکسنگ برانچ آف اسلام آباد ہائی کورٹ. ان کو فوری بشرا عمران صاحبہ کے کیسز جو ہیں، اب 2 کیسز پائل اپ ہو گئے، توشہ خانہ 2 اور ساتھ ہی ساتھ میں القادر جو کہ بہت پہلے سے فائل ہے، یہ کیسز فکس اسی ہفتے کمنگ منڈے کو ہم نے ریکویسٹ کی ہے. تو ہم نے جو آج ہماری درخواست کا متن ہے اور مین سبجیکٹ ہے وہ ہے ارجنٹ اور امیڈیٹ فکسنگ آف دی کیسز آف مسٹر عمران احمد خان نیازی اینڈ ہز وائف
ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स, और उन फैक्टर्स में सबसे बड़ा फैक्टर मेरिट्स ऑफ द केस है मेरी नज़र में, कि केसेस बिल्कुल खोखले हैं, बिल्कुल बेबुनियाद हैं बुशरा इमरान के लिए कि वो खातून हैं, रमज़ान आ रहा है, ये दोनों के लिए सजाए मौत के केसेस नहीं हैं, ये ना ये उम्र कैद के केसेस हैं, शॉर्ट सेंटेंसेस के केसेस हैं। केसेस की नौयत क्या है वो भी सबके इल्म है कि इससे पहले कितनी सजाएं हुई और कितने केसेस में जमानतें हुई। तो जब शॉर्ट सेंटेंस के केसेस हों और उनको फिक्स ना किया जाए, ये बहुत कंसर्निंग और डिस्टर्बिंग एस्पेक्ट है। सो हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा हफ्ते, इसी हफ्ते इमरान खान साहब की और उनकी अहलिया की केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट फिक्स कर दे। तोशाखाना 2 में भी इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के बिहाफ पर जमानतों की एप्लीकेशंस भी फाइल हो गई हैं। इससे पहले उनकी अपील्स पेंडिंग थी, जिस पर ऑफिस ने अभी तक नंबर लगाने की जो है वो जहमत नहीं की। मेरे इल्म में आया है, डायरी नंबर हमारे पास मौजूद हैं, हमारे पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद है कि कितनी दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अप्रोच किया गया चुके हैं। इलाज मुआलजे की बड़ी सीरियस हदायत हो चुकी है। इमरान खान साहब ने उसमें रिपीटेडली जो बात कही कि मुझे जो पिम्स हॉस्पिटल से पता लगा है, पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने उनको ये बात बताई है कि उनकी आंख की बनाई 15% सिर्फ रह गई है। ये मौकफ कोई किसी वकील का मौकफ नहीं है, ना ये मेरा एनालिसिस है, ना ये हो सकता है। ना मैं ऑप्टोमोलॉजिस्ट हूँ, ना मैं कोई आई सर्जन हूँ, ना मेरी रेटिना में कोई स्पेशलाइजेशन है। ये तो जो इंटरव्यू में जो बात रिपोर्ट हुई और 3 से 4 मरतबा उन्होंने बताया कि पिम्स हॉस्पिटल ने जो इमरान खान साहब को बात बताई ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, एलेबोरेट एंड एक्सटेंसिव टेस्ट कंडक्टेड ऑन हिज आई, कि उनकी आंख की बनाई की ये सूरत हाल है। तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, मैं दोबारा कहूँगा, इन द वेरी सेफ हैंड्स ऑफ द एपेक्स कोर्ट, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उससे बढ़ के इंसाफ कहीं से मिल नहीं सकता उनके नोटिस में, और उन्होंने भी इस मामले को बहुत संजीदा और बहुत सीरियस करार दिया और टॉप प्रायोरिटी पे अटॉर्नी जनरल साहब को हदायत दी है कि वो इमरान खान साहब का मुआयना जो स्टेट ऑफ द आर्ट जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, उनसे करवाया जाए। रिपोर्ट बहुत मुफस्सल है, एक्सटेंसिव है, उसमें बहुत सारी तफसीलात मेंशन हैं, और साथ ही साथ में जो रिकमेंडेशंस हैं उसमें ये भी है कि इमरान खान साहब की अपने डॉक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट इस स्टेज पे जब निगलेक्ट और नेग्लिजेंस और परमानेंट डैमेज टू द आई का खदशा बहुत ज़्यादा हो, वो ऑल द मोर रीज़न कि उनके पर्सनल डॉक्टर्स की और पर्सनल ट्रीटमेंट की इन द प्रेजेंस ऑफ फैमिली मेम्बर्स, हमने वो भी रिकमेंडेशंस में वो बात आ चुकी है। सो ऑर्डर इज अवेटेड, मगर वो एक सेपरेट मामला है, एंड आई थिंक कि दैट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैज ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ द इशू एंड इज लुकिंग इनटू द इशू। डिटेल्ड ऑर्डर, लाइक आई सेड, वो हम उसके मुंतजर हैं। मेरिट्स पर इमरान खान साहब का केस ज़बरदस्त है, तोशाखाना में भी, अलकादिर में भी। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि जब ये केसेस फिक्स होंगे, ये आधे घंटे से ऊपर के केसेस नहीं है, मगर तभी आधे घंटे के केसेस होंगे ना जब फिक्स होंगे और आर्ग्यू किए जाएंगे और लगेंगे। तो केसेस चूंकि लगाए नहीं जा रहे, मगर अब ऑल द मोर रीज़न है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं, मेडिकल ग्राउंड तो बात की बात है कि मेडिकल ग्राउंड के ऊपर आपको कंसिडर करते हुए जो ड्यूटी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, कम से कम केसेस को तो फिक्स किया जाए। तो इस हफ्ते स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे हम उम्मीद करते हैं कि मंडे को ये केसेस, रिगार्डलेस के किस दिन केसेस लग सकते हैं या किस दिन नहीं लग सकते, हर केस के अपने हालात होते हैं। ये देखें कि 1 साल से ये दोनों मियाँ बीवी कितनी मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अप्रोच कर चुके हैं और वो केसेस नहीं फिक्स हो रहे। थैंक यू वेरी मच। बस हो गया। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। गवर्नमेंट भी ये कह रही थी, आपने अभी ये बात की, आपने जो रिपोर्ट दी थी उस रिपोर्ट में ये क्लैरिटी नहीं थी कि अभी आपने कहा कि इमरान खान साहब ने आपको ये बताया कि उनको पिम्स के डॉक्टर ने बताया था कि उनकी 85% जो बिलाई है वो जा चुकी है, इसी तरह। जी बिल्कुल। मैं दोबारा ये कहता हूँ कि हाँ, ये मेरी फील्ड नहीं है, ये मेरी स्पेशलाइजेशन नहीं है, मेरा मैंडेट नहीं है, मैं इस पर कमेंट पॉसिबली कर ही नहीं सकता, ये मेरा इख्तियार ही नहीं है। तो हमें तो जो इमरान खान साहब ने अपने इंटरव्यू में बताया, मैंने 3-4 मरतबा एक बात बताई है साकिब साहब, मेरे जो रिपोर्ट की कोई ऐसी चीज नहीं है जो समझ ना आए, कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं है, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। मैंने 2 दफा एक जुमला पहले बोला था, द रिपोर्ट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। इंटरव्यू में उन्होंने क्या बताया, और उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनको पिम्स हॉस्पिटल ने वो टेस्ट और रिसर्च करने के बाद
बताया कि आपकी आंख की बिनाई 15% है। थैंक यू वेरी मच। जी, तो आप देख सकते हैं कि सलमान सफदर साहब जो हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने के बाद बाहर आए हैं। दरख्वास्त जो उन्होंने दायर की है वो इमरान खान ने मेरिट के साथ बाकायदा मेडिकल ग्राउंड पर ज़मानत पर रिहाई मांग ली। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि एक आँख की इस बीमारी का इलाज जेल में मुमकिन नहीं है, इस वजह से इमरान खान का इलाज हस्पताल में किया जाए। हस्पताल की बात करें तो हमारे ज़राए ये कहते हैं कि इमरान खान हस्पताल आने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि मैं बीमारी की वजह से कभी भी बीमारी का बहाना बनाकर जेल से बाहर नहीं निकलूँगा। और लेकिन कल हम पहुँचे शिफा आई हॉस्पिटल, तो वहाँ पर इंतज़ामात तो किए गए थे। सिक्योरिटी जो थी वो उसने सारा जो कंट्रोल था वो अपने हाथ में ले लिया हुआ था, लेकिन कल इमरान खान साहब को नहीं लाया गया। हो सकता है कि इमरान खान साहब को आज सिर्फ जो डॉक्टर्स हैं, जो इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स हैं, उनकी टीम जो है वो वहाँ पर पहुँचे और इलाज किया जाए, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी वो अभी तक यही थी कि इमरान खान को इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स, उनके जो ज़ाती मुआलजीन हैं, उनकी निगरानी में इमरान खान का इलाज करवाया जाए। तो 16 तक जो हिदायत थी वो तो यही थी कि उनको डॉक्टर्स मुहैया की जाए, हस्पताल ले जाने की जो बात है वो अभी तक नहीं की गई थी। तो आप देख सकते हैं इस वक्त सलमान सफदर जो है वो छुट्टी का रोज़ है, हफ्ता है, और दरख्वास्त दायर करने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे हैं। और उन्होंने इमरान खान की जो मेडिकल ग्राउंड पर रिहाई मांगी है। हालांकि अभी तक तो सिर्फ जो जेल मुंतकिल करने की बात थी वो हो रही थी, लेकिन सलमान सफदर साहब ने इमरान खान के मेडिकल बेस पर रिहाई मांगी है। इमरान खान के केसेस आइंदा हफ्ते मुकर्रर किए जाएँ। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। आँख के मर्ज़ के बाद जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर की। बुशरा बीबी खतून हैं, उनको 1 साल से ज़मानत नहीं मिली। हमने दरख्वास्त की है पीर के रोज़ इमरान खान और बुशरा बीबी की ज़मानत की दरख्वास्तें मुकर्रर की जाएँ। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी 18 को इमरान खान की ज़मानतों के केसेस लगा दिए हैं, दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो एक रेमेडी रहती थी वो भी अवेल कर ली गई है। तो लग ये रहा है कि जैसे इमरान खान को काफ़ी हद तक रिलीफ मिलने जा रहा है। लेकिन इमरान खान जो है वो मेडिकल ग्राउंड पर बाहर आने को तैयार नहीं है। और जहाँ तक इमरान खान के तबी मुआयने की बात है तो वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का जो ट्वीट है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा कि कुछ मामला जो है वो खुलकर सामने नज़र आएंगे और कुछ जो है वो बिहाइंड द सीन चलेंगे, ताकि इमरान खान की जो सिक्योरिटी है उनको मसला ना हो। तो इस वक्त वज़ीर जो सलमान सफदर हैं इमरान खान के वकील, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने के बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की और उन्होंने बहुत ज़्यादा बात करने से गुरेज किया। उन्होंने कहा जो इमरान खान की आँख के हवाले से खबर चल रही थी वो उन्होंने खुद एग्जामिन नहीं किया, बल्कि जो मेडिकल रिपोर्ट थी, जो जेन्युइन मेडिकल रिपोर्ट थी, उसको देखने के बाद उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था।